Hello, good afternoon, everyone. Myself, Dr. Girish Goyal, Assistant Professor, Department of Agronomy, School of Agriculture, IIT University, Gwalior. Students, today I am going to start our subject MSc AG Agronomy of major field crop Kharif season. So let's start our topic about cultivation of pigeon pea crop. Students, so guys, this is class lecture 2. I will introduce all the cultivation practices part by parts. Okay, this is 1 to 4 parts. This is complete pigeon pea crop. Okay. So students, before starting the topic, I want to telling you about some points. So students, pigeon pea, ठीक है? तो pigeon pea क्या है? Pigeon pea, commonly known as red gram or arhar, is very old crop of this country. After chickpea, arhar is the second most important pulse crop in the country. So, students, it is a rich source of protein and cell and supplies a major share of the protein requirement of the vegetation population of the country. Okay. So, seed of arhar are also rich in iron and iodine. Okay. This area, Gujarat, MP, UP, Karnataka, Andhra Pradesh. Okay. So, students, this focus this topic, this outlines. Okay. So, students, I will introduce all outlines one by one. So, first introduction, second general information, and third nutritive value, climate and the climate, soil type and field location, soil time and method, okay, seed rate and spacing. This is reference last. Okay. So, first of all, botanical name of pigeon pea, Cajanus kajam. This botanical name and family Fabaceae. Chromosome number 2 and 22. Origin eastern part of India is origin. Okay, this basic of vertical name family chromosome number and origin. This next introduction. Okay, परिचय. So pigeon pea Cajanus kajam, commonly known as red gram or arhar, is a very old crop of this country. After gram arhar is the second most important pulses crop in the country. It is mainly eaten in the form of sweet pulses as dal. इस दाल के नाम से जाना जाता है. Seeds of arhar are also rich in iron, iodine, essential amino acid like lysine, ठीक है, furan, casting and agrine, etc. So more than 80% of the production come of six states of Maharashtra, MP, Karnataka, Gujarat, UP and Jharkhand. Okay. So students स्टूडेंट की डिमांड होती है कि इंग्लिश का हिंदी में भी सर बता दो कुछ, तो मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ और हिंदी में भी समझा देता हूँ स्टूडेंट बोथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो. सो स्टूडेंट्स आमतौर पर पिजन पी लाल चना या अरहर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, देश में बहुत पुरानी फसल है. ठीक है, चने के बाद अरहर देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है. ये मुख्य रूप से विभाजित दाल के रूप में खाया जाता है. ठीक है, भोजन की दाल के रूप में यूज करते हैं. अरहर के बीज की आयरन आयोडीन आवश्यक अमीनो एसिड जैसे लाइकेन, ठीक है, थ्रेओनिन, सिस्टीन और आर्जिनिन आदि से भरपूर होती है. ठीक है, अरहर उत्पादन का 80% से अधिक महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, यूपी, गुजरात और झारखंड के 6 राज्यों में आता है. ठीक है, तो इस नेक्स्ट हमारा जनरल इंफॉर्मेशन. ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे हम बोलते हैं. ठीक है,
जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज पॉपुलर पल्सेस क्रॉप एंड इट इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. इट इज cultivated in tropical and semi-tropical region. It is important legume crop of prime fruit and semi-arid tropics. ठीक है, तो and it is can grow as single crop or intermixed with cereals. It is enriches soil through symbiotic nitrogen fixation. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मेजर पिजन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. ठीक है, तो स्टूडेंट हिंदी में इसका समझा देता हूँ. ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स जो एक ये पिजन की एक लोकप्रिय दलहन फसल है जो कि प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है. इसकी खेती मतलब उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है. ये वर्षा आधारित और अर्ध शुष्क कटिबंधों की महत्वपूर्ण फलियां हैं. और ये एकल फसल के रूप में या अनाज के साथ अतः क्षितित हो सकती है. ये सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी को समृद्ध करता है. ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख भेजनपी उत्पादक राज्य है. ठीक है, तो फिर हमारा आता है नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिटिव वैल्यू. कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं इस दाल में, पिजन में. आई देखते हैं. जैसे प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है हमारी 22.3% एंड फैट कितना होता है 1.74% एंड मिनरल्स कितने होते हैं हमारे 3.5%. फाइबर कितना होता है 1.5% एंड कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 57.6% एंड कैल्शियम कितना होता है 73 mg अपॉन 100 ग्राम एंड फास्फोरस कितना होता है 304 mg अपॉन 100 ग्राम. ठीक है, एंड आयरन कितना होता है 5.8 mg अपॉन 100 ग्राम. ठीक है, मॉइस्चर परसेंट कितनी होती है इसमें 13.4% मॉइस्चर परसेंट होता है. एंड लास्ट है कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है इसमें, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है 335 KCl अपॉन 100 ग्राम. ठीक है, हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू था. तो नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट रिक्वायरमेंट. ठीक है, जिसे हम जलवायु कहते हैं. तो स्टूडेंट्स पिजन इज fundamentally a crop of tropical areas mainly cultivated in semi-arid region of India. Okay. Pigeon pea can be grown with a temperate region from 26 degree to 30 degree in the rainy season. Okay. June to October and 17 degree to 22 degree Celsius in the post-rainy November to March season. Okay. Students, pigeon pea is very sensitive to low radiation at pod development and therefore flowering during the monsoon. And cloudy weather leads to poor pod formation. Okay, students, तो ये क्लाइमेट है जलवायु होती है. ठीक है, ये पिजन पी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है जो मुख्य रूप से भारत के अर्ध उष्ण क्षेत्र में उगाया जाता है. पिजन पी मटर को मतलब पिजन पी को बरसात के मौसम में जून से अक्टूबर में 226 टू 260 डिग्री से 300 डिग्री तक और बरसात के समय में नवंबर से मार्च के मौसम में 170 डिग्री से 220. सॉरी, एक्चुअली मैं सोच बता दूँ कबूतर पिजन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों फसल में मुख्य रूप से भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है. ठीक है, पिजन पी को बरसात के मौसम में 26 डिग्री टू 30 डिग्री. ठीक है, और बरसात के समय में नवंबर टू मार्च के समय में 17 टू 22 डिग्री तक उगाया जा सकता है. फली के विकास में पिजन पी कम विपणन के प्रति बहुत संवेदनशील है. इसलिए मानसून और बादल के मौसम में दौरान फूल आना खराब फली निर्माण की ओर जाता है. इसलिए हमें टाइम से इसको ध्यान रखना है. टाइम से हमें क्लाइमेट को जिस टाइम पे हमें उसको सोइंग करना है, टेम्परेचर करना है. ठीक है, सीजन बाई सीजन. तो नेक्स्ट है हमारा सॉइल टाइप एंड फील्ड प्रिपरेशन. कैसे हम सॉइल टाइप एंड फील्ड प्रिपरेशन करेंगे आइए देखते हैं.
It is successfully grow in black cotton soil, ठीक है, black cotton soil suitable है, will grind with a pH range from 7 to 8.5, pH इसका कितना होना चाहिए 7 to 8.5, pigeon pea respond will be properly tilled and will I grind seed bed, ठीक है, a deep plowing with soil training plowing in the flower waste line, zero tillage, zero under intensive cropping system and broad bed furrow lines. So furrow planting in low laying as well as intercropping areas in recommended waste bed method of planting by leveling at 2 inches deep with row to row distance, ओके, लाइक जो डीप है 2 इंच में होना चाहिए, ठीक है, row to row distance 4 to 5 feet, also 15 feet gap, okay. So second pair of turon bed under intercropping of soybean under transplanting, ठीक है, third method SPI, okay, 5 into 3 and 3 into 1.5 to the specimen recommended, okay. This next time हमारा sowing time of method, okay. So sowing time of method, students, yearly maturity varieties first fortnight of June, okay, and medium and late maturity varieties second fortnight of June, okay. So line sowing by seed drill of desi plowing or by dribbling on the rise and beds, both are recommended as per the areas, okay. तो स्टूडेंट्स ये सोइंग ऑफ टाइम मेथड, ठीक है ना, तो एक्चुअली में पीएनपी की बीज दर एक जीनोटाइप प्रारंभिक माध्यम या देर फसल प्रणाली शुद्ध फसल मिश्रित फसल या अंतर फसल बीज के अंकुरण दर और बीज के द्रव्यमान के लिए वांछित पौधे के घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है सीड रेट एंड स्पेसिंग, ओके, क्या है सीड रेट एंड स्पेसिंग, तो ये देखते हैं सीड रेट स्पेसिंग क्या है। तो students, and the seeded rate of pigeon pea depend on the desired plant density for genotypes, early, medium, or late cropping system, pure crop, mixed crop, or intercrop. Okay. So germination rate of seed and mass of seed. Okay. So नेक्स्ट हमारा ईयरली मैच्योरिंग वैरायटी, ओके। तो कौन सी ईयरली मैच्योरिंग वैरायटी है, तो 20 to 25 kg पर हेक्टेयर, रो टू रो 45 to 60 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट 10 से 15 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट हमारा मीडियम लेट मेच्योरिटी वैरायटी कौन सी है, ठीक है, मतलब ईयरली मेच्योरिटी और मीडियम लेट मेच्योरिटी टू टाइप, ओके। सो मीडियम लेट मेच्योरिटी वैरायटी 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, रो टू रो 60 to 75 एंड प्लांट टू प्लांट 15 to 20 सेंटीमीटर, ओके। So this is seed rate and spacing. So next, students, this most important points recommendation to achieve a higher production कौन से हैं, तो deep summer plowing once in 3 years, okay. The application of fertilizer should be based on soil test value. Seed treatment should be done before sowing. Okay. Use wilt and stately mosaic disease. Okay. Resistant tolerant varieties BSMR 1736, 1843, and 1846. Okay. ICPH 19053 and etc. variety. Okay. So as per sustainability of vision, ठीक है, IPR, AICRP की जानकारी, okay. नेक्स्ट है विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी LR हेयर 1 है, विपुल GMK 189, GT 11101 और पूसा 911 आज़ाद, हमारी CSA की है कानपुर की, ETC, ओके। दिस नेक्स्ट यूज hybrid variety PPH4, ICPH8, IPH09, okay. So this as per
सस्टेनेबिलिटी ऑफ रीजन, ओके, जिस रीजन में हाइब्रिड वैरायटी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है वेट कंट्रोल शुड बी डन एट राइट टाइम, राइट सही समय पे हमको वेट कंट्रोल करना है, ठीक है। तो एडॉप्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर प्लांट प्रोडक्शन, अडॉप्ट करना है हमको प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है। So this students, this topic is finished, this last topic, okay। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है डिफरेंसेस, ओके। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप इससे अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो हम कैसे आपको बताएंगे वेबिनार के थ्रू, और हम वेबिनार के थ्रू आपको दोबारा क्या बताएंगे ही कि तो मेरा वीडियो लेक्चर है, इसके 1 to 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 2 आएगा लेक्चर 2 के साथ। तो आई होप स्टूडेंट आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आई थिंक